हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने का निर्णय लिया है। রাজধানী ঠান্ডার কথা আপনারা জানেন, যদিও সে ঠান্ডা এবছর এখনো পড়েনি, কিন্তু ডিসেম্বর জানুয়ারি কনকনে ঠান্ডা। গত বছর সেই ঠান্ডাতেও দেখা গিয়েছিল কৃষকরা দাঁড়িয়ে রয়েছেন বর্ডারে। তারা চান 3 কৃষি আইন প্রত্যাহার করতে হবে। এক বছর আগে, ঠিক এক বছর আগে 2020-তে যে কৃষি আইন, 3খানা কৃষি আইন পাস হয়ে গিয়েছিল সংসদে, সেই 3 কৃষি আইন এক বছর পর প্রত্যাহার করে নেওয়ার ঘোষণা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। কেন করলেন তা নিয়ে, রাজনৈতিক সদিচ্ছা নিয়ে অনেক প্রশ্ন উঠছে, বিরোধীরা অনেক কথা বলছে। তবে প্রথমে একবার শুনে নেব গুরু নানক জন্ম জয়ন্তীতে জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দিতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী কি ঘোষণা করলেন, শুনুন। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। যে আন্দোলনের কথা বলছিলাম আমরা, কৃষকরা লাগাতার আন্দোলন করে গিয়েছেন, বর্ডারে রয়ে গিয়েছেন। তাদের দাবি একটাই ছিল, কৃষি আইন প্রত্যাহার করতে হবে, তা না হলে তারা বাড়ি ফিরবেন না। তাদের উদ্দেশ্যে বার্তা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর। मैं आज अपने सभी आंदोलनरत किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूं, आज गुरु पर्व का पवित्र दिन है। अब आप अपने अपने घर लौटे, अपने खेत में लौटे, अपने परिवार के बीच लौटे। आइए एक नई शुरुआत करते हैं, नए सिरे से आगे बढ़ते हैं। প্রতিনিধি রাজীব নয়াদিল্লি থেকে আমাদের সঙ্গে এই মুহূর্তে রয়েছেন। রাজীব, প্রথমে একটু তোমার থেকে জেনে নিতে চাইবো, রাজধানীর রাজনীতি কি বলছে, রাজধানীর হাওয়া কি বলছে প্রধানমন্ত্রীর এই ঘোষণার পর? প্রথমে দেখো, প্রধানমন্ত্রী অনেকেই মনে করছেন যে এক তীরে অনেকগুলো পাখি মেরেছেন। আবার এরকমও মনে করা হচ্ছে যে প্রধানমন্ত্রীর এই যে তার পদক্ষেপ একটা পিছিয়ে নিলেন, তিনি যে তার পাটা পিছিয়ে নিলেন, সেক্ষেত্রে বিরোধীরা লাভবান হবে। এরকম দুটো মতবাদ রয়েছে, দুটো মত শোনা যাচ্ছে। তার কারণ এই যে প্রধানমন্ত্রী 3টি কৃষি আইন একসঙ্গে প্রত্যাহার করার কথা ঘোষণা করলেন এবং সংসদের আসন্ন অধিবেশনে সেটি প্রত্যাহার করা হবে, এতে কতগুলি বিষয় রয়েছে। তার কারণ পাঞ্জাব রাজ্যে নির্বাচন, বিধানসভা নির্বাচন রয়েছে, যেখানে বিজেপি না থাকলেও বিজেপির প্রাক্তন সহযোগী দল শিরোমণি অকালি দল রয়েছে, এবং সেক্ষেত্রে শিরোমণি অকালি দল বিজেপিকে ছেড়ে যাওয়ার কারণ কিন্তু ছিল এই কৃষি আইন। সেই কৃষি আইন প্রত্যাহার করে নিচ্ছে নরেন্দ্র মোদী সরকার। তাহলে শিরোমণি অকালি দলের কাছে রাজনীতি করবার জন্য এখন আর কোনো ইস্যু রইল না। সেক্ষেত্রে শিরোমণি অকালি দল আবার বিজেপির হাত ধরতে পারে। দ্বিতীয় বিষয় হচ্ছে কংগ্রেসের অন্তর্কলহ এবং ক্যাপ্টেন অমরিন্দর সিং এর কংগ্রেস ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়া। তিনি এর আগে একাধিকবার দেখা করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর সঙ্গে। সেক্ষেত্রে পাঞ্জাব রাজ্যে কিন্তু বিজেপির একটা কোথাও না কোথাও গ্রিন সিগন্যাল দেখতে পেয়েছে। পাশাপাশি যদি দেখো উত্তরপ্রদেশ রাজ্যেও কিন্তু যোগী আদিত্যনাথ সরকারের যেটুকু মাথা ব্যথার কারণ ছিল, সেটি ছিল কিন্তু এই কৃষক আন্দোলন, কৃষক বিদ্রোহ। সেক্ষেত্রে এই কৃষকদের কারণ পূর্বীয় উত্তর পূর্বের যে উত্তরপ্রদেশ, সেখানে বেশ কয়েকটি আসনে কিন্তু এই কৃষক আন্দোলন একটি প্রভাব ফেলেছিল। এখন এই আইনটা প্রত্যাহার করে নেওয়ার ফলে কিন্তু উত্তরপ্রদেশ, পাঞ্জাব এই দুটি রাজ্যে বিশেষত বিজেপি ভালো ফল করবে বলে বিজেপির তরফে বলা হচ্ছে। উল্টো দিকে যদি কংগ্রেস এবং অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলি, তারা আজকে তাদের হাতে সেই অর্থে ইস্যু যখন কিছু নেই, তারা এখন বলছে না, আসলে বিশ্বাস নেই। এবং পাশাপাশি বলা হচ্ছে রাজীব আমাদের সঙ্গে থাকো, বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো যারা এতদিন ধরে এই 3 কৃষি আইন প্রত্যাহারের দাবি জানিয়ে এসেছে, আজ নরেন্দ্র মোদীর ঘোষণার পর তারা কি বলছেন এক এক করে একটু শুনে নিতে চাইবো। রাজীব প্লিজ আমাদের সঙ্গে থাকো, শুনবো। সৌগত রায়ের সঙ্গে আমরা কথা বলেছিলাম। সারা দেশে
বিশেষ করে উত্তর ভারতে কৃষক বিরোধী হাওয়া একটা উঠছিল। মোদি নিজের গদি বাঁচানোর তাগিদে অবশেষে নত হয়েছেন। এরপর একতরফা ভাবে কোনো পদক্ষেপ নেবার আগে প্রধানমন্ত্রী 10 বার ভাববেন। লেনিন বলেছিলেন 2 steps ফরওয়ার্ড 1 step ব্যাকওয়ার্ড, কিন্তু এটা 2 steps ব্যাকওয়ার্ডই হলো। বিজেপি পিছিয়ে গেল, এই নিয়ে ওরা অনেক প্রচার করেছিল। ওদের মন্ত্রীদের কথা উত্তর ভারতে কৃষি প্রধান অঞ্চলে কেউ শুনছিলেন না। সেই হারটা আরো উত্তরপ্রদেশ নির্বাচনে যাতে সার্বিক না হয় সেই জন্য নরেন্দ্র মোদী বাধ্য হলেন এই পদক্ষেপ নিতে। সৌগত রায়ের বক্তব্য আমরা শুনলাম। এই মুহূর্তে একবার শুনে নেব সরাসরি তৃণমূল সাংসদ সুখেন্দু শেখর রায়, তিনি সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়েছেন, তিনি কি বলছেন শুনবো। নেত্রী মাননীয়া মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে টুইট করেছেন সেটি হয়তো আপনাদের গোচরে এসেছে, এতৎসত্ত্বেও আমি আবার সেটা পড়ে শোনাচ্ছি। মাননীয়া মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় টুইট করেছেন, মাই হার্টফেল্ট কংগ্রাচুলেশনস টু এভরি সিঙ্গল ফার্মার who fought relentlessly and were not faced by the cruelty. देखिए, हमें समझना पड़ेगा जो सरकार है उसके ही नेताओं ने किसानों को क्या 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 नहीं बोला। आंदोलनजीवी, गुंडे, आतंकवादी, देशद्रोही, ये सब किसने कहा? जब ये सब कह रहे थे तो क्या हुआ? प्रधानमंत्री जी चुप क्यों थे? बल्कि उन्होंने आंदोलनजीवी शब्द बोला। जब किसानों की हत्या हो रही थी, जब किसानों को मारा जा रहा था, जब लाठियां बरसाई जा रही थी, जब उनको गिरफ्तार किया जा रहा था, तो कौन कर रहा था? आपकी ही तो सरकार कर रही थी। आज आप आकर कह रहे हैं कि ये कानून आप रिपील करेंगे, तो हम कैसे भरोसा करें? हम आपकी नियत पे कैसे भरोसा करें? सब स्पष्ट है, सामने है देश के। मुझे खुशी इस बात की है कि ये सरकार समझ गई है कि इस देश में किसान से बड़ा कोई नहीं है। इस देश में अगर एक सरकार किसान को कुचलने की कोशिश करती है और किसान खड़ा हो जाता है तो उस सरकार को अंत में झुकना ही पड़ेगा। ये सरकार समझ गई है। इस बात पर मुझे खुशी है और मैं कहना चाहती हूँ कि जो किसान शहीद हुए इस पूरे आंदोलन में, कई किसानों के परिवारों से मैं पिछले पूरे साल में मिल रही हूँ, मैं मिली हूँ, मैं उनका दुख समझती हूँ और हम सबको सबसे पहले उन्हें श्रद्धांजलि देनी चाहिए। अगर सरकार सचमुच सीरियस है तो उनके लिए जो कार्रवाई होनी चाहिए, ख़ास तौर से जो लखीमपुर खेरी में हुआ, उस पर जो कार्रवाई सही ढंग से होनी चाहिए वो करनी चाहिए। मंत्री का बर्खास्त करना चाहिए और इस पूरे देश में जो किसानों की आवाज़ उठी है, हम सबको उनके साथ हमेशा के लिए खड़ा रहना चाहिए। किसान की बहुत समस्याएं हैं, आज हर तरफ से मजबूर है, हर तरफ से वो कर्ज में डूबा हुआ है। मैं ललितपुर गई, ललितपुर में भी आपने देखा कि खाद की लाइन में खड़े खड़े उनकी मृत्यु हो गई। कुछ किसानों ने आत्महत्या की। तो किसानों की जो समस्या है, जिसके लिए किसान आंदोलन कर रहे हैं, उसको ठीक तरह से समझना, उनकी समस्याओं को ठीक तरह से सुलझाने का कर्तव्य हम सबका है। मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि मुझे खुशी है कि जितने भी विपक्ष के दल हैं सब ने पूरी तरह से समर्थन किया इस आंदोलन का और किसान डटे रहे। हमारे भाई बहन जो दिल्ली के बॉर्डर पे भी थे और तमाम प्रदेशों में सब डटे रहे और आज हम उन सबको धन्यवाद देना चाहते हैं। जैसे मैंने कहा, जो शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि देना।
और एमएसपी। इसका श्रेय क्या ये चुनाव में मिली हार की वजह से जो है? एक मिनट में एक एक करके पूछूं। प्रियंका जी, क्या चुनाव में मिली जो हार है उसको देखते हुए ये फैसला लिया गया है कि आने वाले भविष्य में ऐसी हार? ये तो स्पष्ट है, ये बहुत स्पष्ट है। देखिए, जनता में बहुत विवेक है, जनता सब कुछ समझ रही है। प्रियंका जी, several farmers have lost their और इतना समय क्यों इंतजार किया? इतना समय क्यों इंतजार किया? आप आज तक तो आप कुछ नहीं बोले, एक बार आप बॉर्डर पे नहीं गए, एक बार किसानों से मिलने नहीं गए, एक बार बातचीत नहीं की, जहां हत्याएं हो रही हैं वहां भी नहीं गए आप, इतना पास आकर नहीं गए, तो आज अचानक क्या हो गया है? स्पष्ट है, चुनाव आ रहा है। प्रधानमंत्री जी ने माफी तो मांगा, लेकिन एक बार भी जो लोग 500-700 किसान शहीद हुए 1.5 साल के पूरे आंदोलन में, उनके लिए वो श्रद्धांजलि नहीं दी, उनकी बात नहीं आई, उनके फैमिलीज की बात नहीं आई। वही मैं कह रही हूँ कि सबसे पहले तो उन्हें श्रद्धांजलि दीजिए ना, जो शहीद हुए हैं, उनके परिवारों पर आज भी क्या बीत रही है। उन्होंने अपने पूरे भाषण में एक बात कही कि कृषि कानून किसानों की बेहतरी के लिए थे, लेकिन कुछ किसान ऐसे थे जो उससे नाराज थे। तो फिर भी अभी भी जब वो अपने एक तरह से जो उन्होंने गलत किया है उसको पहचान रहे हैं, इसीलिए वो आज भाषण दिया उन्होंने, लेकिन अभी भी ये एक फर्क बनाना चाहते हैं कि ये किसान जो आंदोलन कर रहे हैं ये अलग हैं और बाकी देश के किसान अलग हैं। ये बात बिल्कुल गलत है। पूरा देश का किसान एक है। आज देश में एक भी किसान नहीं है जो प्रताड़ित नहीं है, एक भी किसान नहीं है जिसकी बड़ी बड़ी समस्याएं नहीं है, जो कर्ज में नहीं डूब रहा हो या किसी और वजह से दिक्कत उसको नहीं आ रही हो। आपने देखा है पेट्रोल और डीजल के दाम क्या हैं। डीजल के दाम से सबसे बड़ा प्रभाव किस पर होता है? खाद मिल नहीं रही है, खाद की लाइन में लोग गुजर रहे हैं। आपने पूछ लिया। जब तक संसद में बिल वापस नहीं हो रहा था तब तक उसको अभी मानेंगे नहीं, खाली बिजलीबाजी का देखा जा रहा है जी। उसका भी समर्थन करते हैं कि आप वेट करेंगे कि जब वो वापसी होगी संसद में तब इसको पूर्ण रूप से माना जाएगा? देखिए, तमाम छोटी छोटी चीजों के लिए अध्यादेश लाते हैं, तो इसके लिए क्यों नहीं? क्या इसके लिए भी कोई योजना है कि जब चुनाव पास आएगा तब हम धूमधाम से इसको करेंगे? अभी क्यों नहीं करते? आंदोलन जारी रखेंगे और वो वापस नहीं जाएंगे, तो इसमें क्या कांग्रेस उसका समर्थन करती है? आपको लगता है कि आप किस स्टैंड, आपका स्टैंड क्या है? उनका स्टैंड बिल्कुल सही है, क्योंकि जब इस सरकार की नीयत पर भरोसा नहीं किया जा सकता, इनका रुख रोज बदलता है, तो ये बिल्कुल सही है कि पहले कानून रिपील करें ठीक ढंग से, फिर देखा जाए। Priyanka ji, one question: given that the farm laws have been repealed at the end of the day, they have not been repealed yet. They have not been repealed yet. Yes. Yes. Would the opposition in UP have to recalibrate their strategy in any way for the western part of the state? Do you feel that that is something that you and the political entity I feel that the people of India are extremely wise, and I feel that the people of India are extremely wise. Frankly, there is no one wiser than the farmer. He knows what is good for him, he knows who stands up for him, and he has seen what this government has done, not just with the farm laws, but progressively over the last 7 years to weaken him and to ensure that agriculture is handed over to certain large industrialists, which will not ensure the safety and security of the farmer. Farmer understands this absolutely well. राकेश टिकैत को या विपक्ष को सपा कह रही है कि अखिलेश यादव की वजह से वापस तो राकेश टिकैत क्या? देखिए, ये आंदोलन किसानों का था, किसानों का है। अपने हक की लड़ाई किसान लड़े हैं, शहीद किसान हुए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी राजनीतिक पार्टी को इसका श्रेय लेने की कोशिश भी करनी चाहिए, वो उचित नहीं है। किसानों का ये आंदोलन है, हम सब किसानों का समर्थन हम सब ने किया, हम सब उनके साथ डटे रहे, हम सब उनके साथ खड़े रहे, लेकिन जिसका आंदोलन है, जिसने किया है, उसी का श्रेय। अभिषेक जी कई कानून बनाए हैं, कृषि कानून उसमें से आज वापस हुआ है। क्या अन्य कानून जिसका सड़कों पर विरोध हुआ है उसके लिए भी प्रयास होंगे, जैसे CAA, NRC? देखिए, ये जो आज हुआ है पूरी तरह से इसमें किसानों की जीत है और अहंकार की हार है।
तो सरकार समझ रही है कि जब देशवासी, जब किसान खड़ा हो जाता है, जब डटा रहता है तो उसी को झुकना पड़ता है। और ये मेरी तो आशा है कि आगे भी जो गलत कार्य ये सरकार करती है, जो गलत कानून लाती है, उनका विरोध होना चाहिए और सबको एकजुट होकर खड़ा होना चाहिए और सरकार को झुकना ही पड़ेगा। मेरे भाई ने शायद पिछले साल ही कहा था, एक बयान दिया था कि अंत में सरकार को झुकना ही पड़ेगा, क्योंकि किसान की जो शक्ति है इस देश में सबसे बड़ी शक्ति है, अन्नदाता है इस देश का। ये देश किसानों ने बनाया है। उत्तर प्रदेश और पंजाब दोनों जगह चुनाव है, पंजाब पर क्या असर पड़ेगा? क्योंकि अमरिंदर सिंह वहां पर उन्होंने सबसे पहले स्वागत करने वालों में हैं, एक तरीके से वो बीजेपी के साथ जा रहे हैं। इससे आपको कुछ समझना चाहिए। देखिए, पंजाब की जनता में बहुत विवेक है। पंजाब को किसानों ने बनाया है, किसान सब कुछ समझता है, मुझे समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो सब समझते हैं कि क्या हो रहा है, सब देख रहे हैं, पूरा देश देख रहा है कि किस तरह से राजनीति हो रही है। हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने का निर्णय लिया है। Capitalists. So we demand that not only withdrawal of these 3 draconian laws, but the incident that took place in Lakhimpur very recently, where the involvement of a union minister and his son was seen by everyone on the television, how the peaceful agitators were mowed down by a moving car, run by the minister's son, and he also fired from his gun. All these forensic tests have proved that the son of a union minister was very much involved in this pathetic incident, which created uproar not only inside India but outside India too. And the Honorable Supreme Court had ordered an inquiry, and we sincerely hope and believe that the investigation shall be expedited and all the culprits shall be brought to book. We also demand a public apology from the Prime Minister for the more than 700 farmers who died while participating in this movement, and he should tender public apology and arrange for adequate compensation to the next of the kins of the people who died. और हिंदी में भी बोलना है क्या? मैं संक्षेप में यही बोलना चाहता हूं, वो जो ट्वीट मैंने ममता जी के बारे में और अभिषेक जी के बारे में बोला, वो रिपीट करना है क्या? हाँ जी, ये सवाल बाद में होगा, पहले बोलने दीजिए। हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने का निर्णय लिया है। टॉप टेक TMT लगाओ, टेंशन को भगाओ।